हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन इस युद्ध में हमने क्या पाया, क्या खोया और क्या खोने को रह गया, इस पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हर एक पहलू जो इस युद्ध का कारण बना और इसका परिणाम क्या निकला। चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक आज क्या है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वॉर वन, द नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट अराइव हियर a Pan-Slav movement and Balkan politics. That is important. Pan-Slav movement and Balkan politics. Balkan region of Eastern Europe consisted of many states such as Greece, Romania, and Bulgaria, and Serbia, and Montenegro, and many other small states also here. And originally these states were under the control of the Ottoman Empire or the ruler of Turkey. By the beginning of 20th century, the Ottoman Empire began to decline. That is, the Ottoman Empire began to decline, and European power, including Austria and Russia, as a result for the obtained a foothold in the region. The matter got complicated with the resonance of nationalism among the people in most of these states. There were called to the Slavs. This where is called Slav. What is Slavs here? The matter got complicated with the resurgence of nationalism among their people in most of these states. There is called Slavs. Some they were scattered in many of Eastern Europe states, and they started a national movement called Pan-Slav movement. There is a Pan-Slav movement is a national movement. The main demand was the entitlement of Slavs as one of state under Siberia, and the state which had to be a large Slav population in this movement. There is a largest Slavs is a population participate in this movement, and Siberia was supported by the Russia, and whereas the Austrians opposed to the Siberia and the national movement. There is an important point here. Siberia was supported by the Russia, and whereas the Austrians is opposed Siberia and their national movement, and this resulting in the rebels between the Russia and Austria. Austria did not be bound to a strong Siberia state, which would be hamper their ambition of expansion. In 1908, Austria annexed to the two Slav states. There is two Slav states in this time is a Bosnia and the Herzegovina, and the leading to the hostile between the Siberia and Austria. Between 1912 and 1914, for the Balkan state is a fought. There is a two war against the Ottoman Empire for independence, and Turkey was defeated and lost all the positions and Europe. Austria hardly set up independent state of Balkania and against Siberia ambition of Great Siberia, and hostility is mounted between to Austria on his side and Siberia as Russia on other. This is important here. The hostility is mounted between to Austria and one side of Siberia and Russia on other. That is important. As you can see, by the 1914, their atmosphere was explosive. Against this background, Akarkodovs, Francis Ferdinand, and there's to be Austrians don't went to be Sarajevo and the capital of Zina and other state visit. As he was getting down from his car, and he was assassinated by Siberian youth on 28 June 1914. The murder of the Archduke Franz Ferdinand and became the immediately case of the war. There is the most important point here, and also is asking for the UPSC exam, not question on exam time. There is the recently causing of the war. First of all, a recently causing. There is immediately causing here. There is immediately causing here is a Siberia youth on 28 June 1914, the murder of Archduke Francis Ferdinand because they immediately causing here. Austria held the Siberia responsible for this
assignation of their princes as here with the ultimatum of the various condition. There are the Austrias is the give to the ultimatum for this murder and assured there is Russian help. Savaria refused to be accept the ultimatum and start to the mobilizing airdrops on the border. On 28 July 1914, Austria is declared war on the Savaria. There is recently immediately current of the First World War. And on the August 1914, Germany declared war on the Russia. On 3rd August 1914, Germany declared war on France. As German troops entered Belgium and England declared war of Germany on 4th August 1914. Thus, the minor incident in Europe and targeted with the war with all the countries joined in, which soon took the shape of World War I. That is the most important क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत। अगला पॉइंट जो है पान स्लैब आंदोलन और बल्काना राजनीति, ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना थी। पान स्लैब आंदोलन और बल्काना राजनीति काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अगर इसकी बात करें तो देखा जाता है इसमें कि पूर्वी यूरोप के बल्काना क्षेत्र में ग्रीस, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्वेरिया, मोंटेनेग्रो और कई अन्य छोटे राज्य शामिल थे। यानी यूरोप के बल्काना क्षेत्र में कई राज्य जो थे राज्य सम्मिलित थे, जैसे ग्रीस, रोमानिया, बुल्गारिया और सर्वेरिया और मोंटेनेग्रो। कहते हैं मूलतः ये राज्य तुर्क साम्राज्य या तुर्की के शासक के नियंत्रण के अधीन थे। यानी ये सारे के सारे राज्य जो थे तुर्की साम्राज्य या तुर्की के शासक के अधीन थे। और 20वीं सदी के शुरुआत में तुर्क साम्राज्य में गिरावट शुरू हुई। यानी तुर्क साम्राज्य तो वो काफ़ी गिरावट महसूस की गई, यानी राज्य का जो है पतन होने लग गया। ऑस्ट्रिया और रूस समेत कई यूरोपीय शक्ति इन क्षेत्रों में पैर जमाने के लिए पहुंची। अब देखिए, ऑस्ट्रिया और रूस जो था तुर्की पे अपना जो है वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। यानी यूरोपीय शक्ति इस क्षेत्र में अपना पैर जमाने के लिए अग्रसर थे। बात तब और जटिल बन गई जब इन राजाओं के अधिकांश में लोगों ने राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान हुआ। लेकिन इसी क्षेत्र में जो है राष्ट्रवाद ने जन्म ले लिया, और राष्ट्रवाद जन्म होने के कारण जो है बहुत ही उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। उन्होंने स्लैब कहा जाता था क्योंकि वो लोगों को स्लैब कहते थे, और वह पूर्वी यूरोप देशों में कई राज्यों में बिखरे हुए थे। यानी ये संगठित नहीं थे, बिखरे हुए थे। और उन्होंने एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू कर दी। यानी इन्होंने इसके विरुद्ध एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू कर दिया, और इसको पान स्लैब आंदोलन कहा जाता है। अपने आप को बचाने के लिए आंदोलन करना स्वाभाविक थी, और इस आंदोलन को जो है पान स्लैब आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इनकी मुख्य मांग थी जो है सवेरिया, क्योंकि सवेरिया जनसंख्या के तहत एक स्लैब राज्य था। यानी देखा जाए सवेरिया जो थी एक स्लैब, ठीक है, राज्य थी। सवेरिया का रूस द्वारा समर्थन भी किया गया था। सवेरिया का रूस ने इसका समर्थन भी किया था, जबकि ऑस्ट्रिया ने सवेरिया और उनके राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया था। क्योंकि ऑस्ट्रिया का तो सिंपल सी बात है, उस पर कब्जा करना था, तो विरोध इस आंदोलन में करेंगे ही करेंगे। लेकिन रूस ने इसमें समर्थन किया, ये भी बात इंपॉर्टेंट थी। इसे रूस और ऑस्ट्रिया के बीच जो था तनातनी हो गई। अब देखिए, ये सूत्रपात्र थी। कहते हैं सवेरिया रूस का समर्थन किया कि सवेरिया ने इस जो है पान स्लैब आंदोलन अच्छा किया, लेकिन ऑस्ट्रिया इस बात के समर्थन में खिलाफ था, इस विद्रोह के खिलाफ था। इसलिए आप देखिए रूस और ऑस्ट्रिया के बीच जो है काफ़ी प्रतिद्वंद्विता का जो है होड़ शुरू हो गई। यानी प्रतिद्वंद्विता का मतलब होता है कि आपके सामने जो है प्रतिद्वंदी है, यानी प्रतिद्वंदी के रूप में वो जो है खड़ा हो गया रूस के सामने ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया मजबूत साइबेरिया राज्य था, लेकिन देखा जाए उस समय ऑस्ट्रिया जो था मजबूत साइबेरिया राज्य था, जो अपने विस्तार की महत्वाकांक्षा में बंधा नहीं रहता था। यानी महत्वाकांक्षा में बंधा नहीं रहता था। 1908 में ऑस्ट्रिया ने 2 स्लैब राज्यों बेसिनिया और हेर्ज़ेगोविना पर कब्जा कर लिया, जो साइबेरिया और ऑस्ट्रिया के बीच दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण बना उस समय। यानी ऑस्ट्रिया ने, क्योंकि इसका महत्वाकांक्षा ही था पूरे विश्व में अपना राज्य स्थापित करना, और ऑस्ट्रिया ने 2 स्लैब राज्य बेसिनिया और हेर्ज़ेगोविना पर जो है कब्जा कर लिया, और इस वजह से साइबेरिया जो था ऑस्ट्रिया के बीच दुश्मनी शुरू हो गई।
और 1912 से 1914 के बीच में 4 बल्करा राज्यों में स्वतंत्रता के लिए तुर्क सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़े गए। अब देखिए 1912 से लेकर 14 तक, यानी देखा जाए तो बहुत कम समय काल है, लेकिन इसी समय काल में 4 बल्करा राज्यों में स्वतंत्रता के लिए 4 युद्ध लड़े गए हैं। लेकिन इसमें देखा जाए तो तुर्की हार गया। तुर्की जो थी यहाँ पर हार हुई, ठीक है, यानी तुर्की के सम्राट के खिलाफ ये 4 युद्ध लड़े गए, लेकिन इसमें तुर्की जो था हार गया और यूरोप में उसकी संपत्ति समाप्त हो गई, क्योंकि पावरफुल था, सारे युद्ध में संपत्ति खत्म हो गई, अब उसके पास कोई संपत्ति बच नहीं गई। और ऑस्ट्रिया ने जल्दी से सर्बिया की महत्वाकांक्षा के खिलाफ अल्बानिया के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी, यानी महत्वाकांक्षा ने, क्योंकि आपको पता है, आपने भी देखा होगा कि हमारे देश में भी जो है राज्यों का बंटवारा होने लग जाता है। आपने देखा ही होगा बिहार 2 राज्य में कन्वर्ट हो गया, किस किस में आपको पता ही है, झारखंड और बिहार में कन्वर्ट हो गया। इवन कि अब जम्मू कश्मीर को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, आपको पता ही है, हैदराबाद भी अब 2 भागों में बट गया है। तो आखिर ये जो है समय समय पर राज्य के बंटवारा क्यों होते हैं दोस्तों? राज्य का बंटवारा इसलिए लोग करते हैं कि इससे उनको जो है शासन मिल सके और वो शासन कर सके एक राज्य में बिना कोई फिक्र की। अब मान लीजिए एक राज्य है, पहले अगर राज्य रहा होगा बिहार और जो है झारखंड का, तो एक मुख्यमंत्री होगा, लेकिन अब देखा जाए 2 हो गया, यानी 2 को शासन मिल गया। तो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ये लोग जो है राज्यों की बंटवारा करने में ही अपना समझदारी समझते हैं, लेकिन वो कहते हैं राज्य की बंटवारा करने में कभी समझदारी नहीं है। अब समझदारी कैसे हो सकती है? अब देखिए ये बात पे मैं जो है प्रश्न उठाता हूँ कि दिल्ली में पानी इतनी गंदी है और वहाँ के लोग पीने में मजबूर है, लेकिन हरियाणा में पानी साफ है। अब राज्य अलग होने के कारण क्या हुआ, वो उसको पानी नहीं दे रहा, वो पानी से लेकर ले वो मांग रहा है, फिर भी दिया नहीं जा रहा है। तो आप समझ सकते हो ना कि जितना राज्यों का बंटवारा हो जाएगा भारत उतने ही मुसीबतों में से घिर जाएगा। इसलिए राज्यों की बंटवारा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने राज्य बटेंगे उतने जो है मंत्रियों के पद मिलेंगे और इससे जो है भारत का इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था खोखला होगा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है, गवर्नर होता है, उसके मंत्री परिषद होते हैं, उनके सारे जो होते हैं सलाहकार होते हैं, नए नए तरह तरह के फैसिलिटी होती हैं। और इतने राज्य छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाएंगे तो कितने सारे मुख्यमंत्री हो जाएंगे, और इसका पैसा कहाँ से आएगा? आएगा तो आम गरीब बंदों से जाएगा ना। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राज्यों के बंटवारा करना कहीं की समझदारी नहीं है। और यही बात यहाँ भी करके दिखाया गया कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने जल्दी से ग्रेट सर्बिया को महत्वाकांक्षा के खिलाफ अल्बानिया को एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। अब दुश्मनी में एक तरफ सर्बिया और रूस थे, दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया था। अब देखिए बात बन गई ना कि यहाँ पर सर्बिया और रूस एक तरफ थे और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया था। जैसा कि आप 1914 के दौर देख सकते हैं कि यूरोप में माहौल विस्फोटक था। माहौल जो थी इतनी गर्मासी गई जो कभी भी विस्फोट हो सकता था, कभी भी जो है युद्ध का रूप धारण कर सकता था। और इस पृष्ठभूमि के खिलाफ फ्रांसिस फर्डिनांड ऑस्ट्रेलिया के सिंहासन के लिए बारिश एक राज्य की यात्रा पर सरबोसोस बेनिया की राजधानी के लिए गए और वो अपनी कार के नीचे उतर ही रहे थे कि एक सर्बिया युवा के द्वारा 28 जून 1914 को उनकी हत्या कर दी। अब देखिए एक सर्बिया युवा के द्वारा, लेकिन अगर आप इसकी तह तक पहुंचोगे ना तो एक सर्बिया वो युवा नहीं रहा होगा, उसका लिंक कहीं ना कहीं राजनीतिक नेताओं के साथ 100% होगा, क्योंकि वो तो युद्ध करवाना चाहते थे। और इससे अच्छा माहौल कैसे गरमा सकता है? इसमें जो है देखिए ऑस्ट्रिया के सिंहासन के वारिस यानी राजकुमार की हत्या, ये तो आम बात नहीं थी। अब ऑस्ट्रिया के सिंहासन के बाद अब ऑस्ट्रिया कैसे चुप रह सकता है जब उसकी जो है राजकुमार की हत्या कर दिया गया, यानी 28 जून 1914 को उनकी हत्या कर दी गई। और वो भी देखिए यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड दी गई है, एक सर्बिया युवा के, युवा मतलब आम बंदा। लेकिन देखा जाए अगर आप इसकी विस्तार से अगर इसका अध्ययन करोगे तो आपको एमए के सब्जेक्ट में पता लगेगा कि ये आम युवा नहीं था, इसका लिंक नेताओं के साथ था, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ युद्ध के कारण तलाश रहे थे और ये सबसे बड़ा कारण बना। और कहते हैं उसकी हत्या कारण जो आर्थर फ्रांस की हत्या युद्ध का तत्कालीन कारण बन गया।
अब देखिए, आर्थडिको फ्रांसिस फेडरस की हत्या युद्ध का सबसे बड़ा तत्कालीन कारण बना। यानी ऑस्ट्रिया के सिंहासन के वारिस राजकुमार की जब हत्या कर दी गई 28 जून 1914 में, तो इस समय जो है तत्कालीन विश्व युद्ध का सबसे बड़ा सूत्रपात बना दिया और ऑस्ट्रिया के साइबेरिया को अपने राजकुमार की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। यानी ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया को जो है इसकी हत्या का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन यहाँ पर बताया गया सिर्फ एक युवक ने हत्या किया। अब क्योंकि आपको पता है कोई भी जो बड़े बंदे वो तो हत्या करने जाएंगे नहीं, तो ये ऑस्ट्रिया ने साफ बता दिया कि साइबेरिया के अपने राजकुमार की हत्या के लिए जिम्मेदार बताया और उसने विभिन्न शर्तों के साथ एक अंतिम चेतावनी दे दी। अब वो अंतिम चेतावनी क्या थी? इसमें रूसी मदद का आश्वासन दिया गया। सर्वेयस ने अल्टीमेट स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन जो दिया गया अल्टीमेट वो स्वीकार करने से उसने साफ मना कर दिया। अब ऑस्ट्रिया जो था इस पर काफ़ी भड़क गया और सीमा पर अपने सैनिकों के जो जुटाने शुरू कर दिए और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। ये 28 जुलाई 1914 पहला युद्ध का सूत्रपात था प्रथम विश्व युद्ध के, और ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया पर युद्ध की घोषणा की और 1 अगस्त 1914 में जर्मनी के रूस पर युद्ध की घोषणा की गई। अब देखिए, हर एक देश ने दूसरे देश पे जो है युद्ध की घोषणा कर दी, लेकिन इसका सूत्रपात कहाँ से हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के जो है ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या से। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ऑस्ट्रिया के जो है राजकुमार की हत्या से, और इसका दोषी किसको माना गया? सर्बिया को माना गया, और इसी वजह से साइबेरिया को जो अल्टीमेट दिया गया ऑस्ट्रिया के अंतर्गत, लेकिन साइबेरिया ने इसे स्वीकार नहीं किया और इसी कारण जो है इस समय जो है सीमा पर लगाना शुरू किया और युद्ध का सूत्रपात हो गया। कहते 28 जुलाई 1914 में ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया पर युद्ध की घोषणा की, यानी ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया पर युद्ध की घोषणा कर दी और 1 अगस्त 1914 जर्मनी रूस पर युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी ने रूस पर अटैक कर दिया और 3 अगस्त 1914 में जर्मनी ने फ्रांस पर युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी ने फ्रांस पर। अब जर्मनी सैनिक ने बेल्जियम में प्रवेश किया और इंग्लैंड में जर्मनी पर युद्ध की घोषणा अगस्त 1914 में कर दी। अब सब देश एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर दिए और इस प्रकार यूरोप में एक छोटी सी घटना में सभी देशों को शामिल होने के से युद्ध से जल्द ही विश्व युद्ध का आकार ले लिया। यानी देखिए, छोटी सी घटना जिसमें समझौता भी की जा सकती थी, जिसमें कुछ बात से जो इसको टाला भी जा सकता था, लेकिन ये विश्व युद्ध का जो है कारण बना दिया।